Welcome back, everybody. This is our fourth class in NEET previous year questions for chapter Gravitation of class 11. Before this, we have made three videos in this series, and all of those videos are available on our YouTube channel. Name of channel is Point Basics, and you can find out all these videos and all other previous videos on our playlist section. There is a dedicated playlist for NEET videos, and name of that playlist is NEET previous year questions for physics. And similar series we have started for JEE mains also, so you can go and check those videos also. And if you find them useful, then do press the like button, share them as much as possible, and subscribe to our channel. It helps a lot when you share and subscribe. Also, if you want to support us financially, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount you want. With this amount, in future, we will be able to get better books and better computer hardware, so that our future videos can be of better content in better resolution. So with this, let's start today's video. In previous video, I think we have covered up to question number 55 or something. Let's see. Uh, okay. Yes, this was the last question. I think 55. Okay. So 55 was the last question on previous video. Let's today start with question number 56. So here it is mentioned the escape velocity of a body on surface of Earth is 11.2 km per second. If Earth mass increases to twice of its present value and radius of Earth becomes half, then escape velocity हमें बताना है. So जो mass है वो half हो जाता है, twice हो जाता है, sorry. Mass of Earth becomes twice of mass of Earth, and जो radius of Earth है वो हो जाती है हमारे पास half radius of Earth. तो जो ये वाला सिनेरियो है, यहाँ पे हमारे पास एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है, इट इज √2 g m मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ. तो जो नई एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी, मास हो जाएगा 2 me, सो 2g into 2 me डिवाइडेड बाय re/2. सो इट कैन बी रिटन एज, ये 2 into 2 4 हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट बाहर आके 2 हो जाएगा, और बाकी 2 gme को बाय re को हम एज इट इज रखते हैं. और ये हमारे पास क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ. सो वीई डैश की वैल्यू आ जाती है 2 ऑफ वीई, और वीई की वैल्यू हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. सो कम्स आउट टू बी 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड. ये फाइनल वैल्यू आ जाती है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Next question. Escape velocity from the Earth's surface is VE. The escape velocity from the surface of planet whose mass and radius are 3 times that of Earth. So mass भी 3 times है और radius भी 3 times है. So again escape velocity के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हम planet के लिए लिखते हैं 2g mass of planet by radius of planet. अर्थ के लिए हो जाएगा 2g मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ अर्थ. तो प्लैनेट के लिए जब सॉल्व करेंगे इसको, 2g जो मास है 3 टाइम्स है और रेडियस भी 3 टाइम्स है. सो 3 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ. सो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास अगेन वही फॉर्मूला बच जाएगा me/re. और ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ. सो दोनों वेलोसिटीज इक्वल होंगी, प्लैनेट की एस्केप और अर्थ की एस्केप. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिकॉज हमें यहाँ पे प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी बतानी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Escape velocity from the earth is 11.2 km per second. If the body is projected in a direction making angle 45 degree to the vertical, then the escape velocity is. तो वर्टिकल के साथ 45 के एंगल से फेंका गया है. तो सपोज कीजिए ये हमारी अर्थ है, और यहाँ पे हम कोई वर्टिकल एक्सिस ले लेते हैं. लेट्स थिंक दिस,
ये वाला एक्सिस हमने ले लिया, ये वर्टिकल एक्सिस है, और ये बोला गया है कि बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है इसके साथ 45 के एंगल पे, तो बॉडी कुछ ऐसे गई है 45 के एंगल। तो अभी आपको लग सकता है कि सर इसमें हमें वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और जो हम वो कोई पॉइंट बनाएंगे यहाँ पे कि आप यहाँ पे थीटा ऐसे लेते, ये 45 डिग्री गिवन है वैसे, कि हम ये जो वेलोसिटी है v, इसका हम यहाँ पे कंपोनेंट लेते v cos 45, और उसके हिसाब से जो हमारी वेलोसिटी है उसमें चेंज आ जाता, प्रोजेक्शन वेलोसिटी में चेंज आ जाता। बट ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज जो एस्केप वेलोसिटी की कैलकुलेशन है वो कहां से आती है, वो एनर्जी से आती है, और एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एस्केप वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ए पे है और फाइनली बी पे पहुंच जाता है जहां पे उसकी टोटल एनर्जी जीरो है, मींस जीरो एनर्जी का मींस वो अब अर्थ की फील्ड में नहीं है और वो रेस्ट पे है। सो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी होती है माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियस ऑफ अर्थ, बिकॉज सेंटर से ए पॉइंट का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ है, प्लस ऑब्जेक्ट के पास कोई काइनेटिक एनर्जी है हाफ वी स्क्वायर, और फाइनल एनर्जी हो जाती है जीरो। तो यहां से आप ये एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला निकालते हो जो आता है हमारे पास 2gme by re। सो बिकॉज सारी कैलकुलेशन एनर्जी के बेसिस पे हो रही है, और एनर्जी के अंदर हम डायरेक्शन वाइज कंपोनेंट्स नहीं लेते, हम कंप्लीट वैल्यू को लेते हैं। सो बिकॉज सारी कैलकुलेशन एनर्जी से हो रही है, वेलोसिटी की वैल्यू एनर्जी से आ रही है, तो अगर एनर्जी एंगल से चेंज होती तो यहाँ पे भी चेंज आता, बट एनर्जी में ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी में ऐसा कोई चेंज नहीं आता। दैट्स व्हाई एस्केप वेलोसिटी पे भी एंगल करने से कोई चेंज नहीं आता, वो अगेन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगी, चाहे आपका ऑब्जेक्ट को आप ऐसे ही क्यों ना प्रोजेक्ट कर दो, बिल्कुल अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ के पैरेलल, जो आप जहां पे देख रहे होंगे वहां से अगर आप अर्थ के सरफेस के भी पैरेलल लॉन्च कर देंगे, प्रोवाइडेड उसके आगे पाथ में कुछ ना हो ऑब्स्ट्रक्शंस, तब भी वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आउटसाइड चला जाएगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर सैटेलाइट escape velocity is 11 kilometer per second. If the satellite is launched at an angle 60 degree with the vertical, then escape velocity will be. So again जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि चाहे आप 90 के एंगल पे प्रोजेक्ट कर लो या 60 पे या किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर लो, एस्केप वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। स्टार्ट इनिशियली एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड है, तो अगर आप सेम प्लेस से 60 के एंगल पे भी प्रोजेक्ट करोगे तो भी वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड ही रहेगी। एस्केप वेलोसिटी में जो चेंजेस आते हैं, लेट मी एक्सप्लेन कि चेंजेस कहां पे आएंगे। इसको हम विद फिल विदाउट फिल बना देते हैं एंड यहां पे फिल कर देते हैं। सपोज कीजिए ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड हम ऑर्बिट्स बना देते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। नाउ यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये है पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट है, उसके बाद सपोज ये पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट सी पे ऑब्जेक्ट है हमारा। तो अगर आप ये पॉइंट ए से ऑब्जेक्ट को स्पेस में भेज रहे हो और वहां से एस्केप वेलोसिटी निकालते हो, बी से निकालते हो और सी से निकालते हो, ये तीनों के लिए अलग अलग आएगी। बट जब तक आप सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हो, मीन सेंटर से आप डिस्टेंस चेंज नहीं करते, जैसे ये बी के लिए जो इस सर्कल है, इस सर्कल से आप कहीं से प्रोजेक्ट कर दीजिए ऑब्जेक्ट को, पूरे सर्कल पे आपको सेम एस्केप वेलोसिटी मिलेगी, चाहे आप किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दीजिए। सिमिलरली ए के लिए, जो ए है यहाँ पे अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, तो अर्थ के सरफेस से आप किसी भी वैल्यू पे प्रोजेक्ट कर दीजिए, किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट कर लीजिए, अगेन आपको सेम एस्केप वेलोसिटी ही मिलेगी। और यहाँ पे अगर एस्केप वेलोसिटीज का तीनों का आप रिलेशन निकालने जाओगे तो ए पॉइंट की एस्केप वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बी पॉइंट की आएगी और उसके बाद सी पॉइंट की आएगी। जितना कोई ऑब्जेक्ट सेंटर के पास होगा
उतना उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एस्केप करने के लिए, जितना दूर होगा उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इसका आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite is orbiting just above the surface of Earth with period t. If d is the density of the Earth and g is the universal gravitational constant, then the quantity 3 pi by gd represent. तो हमें 3 pi by gd है जो उसको रिप्रेजेंट करना है कि वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सो अगेन कैलकुलेशंस करते हैं। तो उसका टाइम पीरियड गिवन है हमें सैटेलाइट का, और ये बोला गया कि जस्ट अबव द सरफेस है। तो अगर जस्ट अबव द सरफेस है, इट मींस कि उसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट उसकी ऑलमोस्ट जीरो है। मींस जो आपका सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिट, डोंट हैव इट विद द नोटिस, आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि जो ये ऑरेंज पार्ट है ये अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये पिंक की जो हमने सर्कल ड्रॉ किया ये जो सैटेलाइट है उसकी ऑर्बिट को डिनोट करता है। तो उसकी हाइट बहुत स्मॉल है, तो हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं कि वो अर्थ के सरफेस के पास ही रिवॉल्व कर रहा है। उसका टाइम पीरियड p है, अर्थ की डेंसिटी d दी हुई है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g गिवन है, तो ये बाकी वैल्यूज हमें गिवन है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रोटेट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के पास टोटल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी, और हमें पता है दोनों के लिए फॉर्मूला कि जब भी कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट करता है तो उसकी टोटल एनर्जी होती है माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट बाय ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट और इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। बिकॉज ये बिल्कुल अर्थ के पास, सरफेस के पास ही है, तो डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ अर्थ ही मान के चलेंगे। सो 2re। नाउ ये तो हो गई उसकी टोटल एनर्जी, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इसका जस्ट पॉजिटिव होती है, जी एम ई एम बाय 2re। और जो काइनेटिक एनर्जी है अगेन आपको पता है, उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है हाफ एम वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट स्क्वायर। सो दोनों को अगर कंपेयर करें तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो एम से एम कैंसिल हो गया और यहाँ से सैटेलाइट की वेलोसिटी आ जाएगी जी एम ई बाय आर ई अंडर रूट। नाउ वेलोसिटी आ गई तो हमें पता है कि टाइम पीरियड टी है, तो टाइम की वैल्यू होती है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना होगा इसका, जो सरकमफ्रेंस के इक्वल है, दैट इज 2 पाई आर ई, और वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ही ली है जी एम ई बाय आर ई। क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर ई स्क्वायर। ये आर ई ऊपर होके आएगा मल्टीप्लाई में और नीचे हो जाएगा जी एम ई। तो हमें निकालना है 3 पाई बाय जी डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सो देखिए हमारे पास g तो आ चुका है, d नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, और 3 नहीं है, और d क्या है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। सो जो मास है, मास को हमें डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। हमें ये पता है जब डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, और यहाँ पे डेंसिटी को d यूज किया गया है। सो मास आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या होगी, अर्थ की, या इस ऑर्बिट की वॉल्यूम होगी। वैसे हम अर्थ की ही लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मास सारा अर्थ के अंदर ही कंसंट्रेटेड है, इस ऑर्बिट के अंदर नहीं है। 4 बाय पाई आर ई क्यूब। सो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर आर ई क्यूब डिवाइडेड बाय डेंसिटी 3 पाई आर ई क्यूब। सो आर ई क्यूब से आर ई क्यूब कैंसिल, पाई से ये स्क्वायर फिनिश हो जाएगा, 4 से 4 फिनिश हो जाएगा, तो हमारे पास टी स्क्वायर बचता है, यहाँ पे पाई और ये 3 ऊपर आएगा तो 3 पाई
एंड हाँ जी हम यहाँ पे मिस कर गए, तो साथ में जी भी था, जी एम ई था, डिवाइड बाय जी डी। सो 3 पाई बाय जी डी ही कैलकुलेट करना था और ये किसके इक्वल आया, टी स्क्वायर के इक्वल आया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a remote sensing satellite of earth revolves in a circular orbit, height given है orbit की, above the surface of earth, if radius of earth is, earth की radius given है, g की value given है, orbital speed हमें find out करनी है। so again हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट के सैटेलाइट के लिए, इट इज GME मास ऑफ सैटेलाइट इनटू डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ प्लस उसकी हाइट, और ये इक्वल होती है बिकॉज ये काइनेटिक एनर्जी है तो मास ऑफ सैटेलाइट इनटू वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट स्क्वायर, मास से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ से Vs की वैल्यू आती है GME डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट। सो वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और हमें यहाँ पे जो आंसर है वो g की फॉर्म में गिवन है, ना हमें मास ऑफ अर्थ गिवन है और स्मॉल g की फॉर्म में स्मॉल g की वैल्यू गिवन है, मींस हमें यहाँ पे स्मॉल g की टर्म्स में आंसर को कन्वर्ट करना होगा। सो लेट अस डू दैट। हमें ये पता है कि जो स्मॉल g होता है इट इज GME बाय आर स्क्वायर, तो हमारे पास GME है, हमें यहाँ पे नीचे आर स्क्वायर फॉर्म करना है। सो व्हाट वी डू, GME एज इट इज रहेगा, यहाँ से RE कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 1 प्लस एच बाय RE से मल्टीप्लाई और RE से डिवाइड कर दिया। सो GME बाय RE स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल g, सो ये बन जाएगा स्मॉल g इंटू RE डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय RE, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन जाता है। रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है और ये वैल्यूज हमें गिवन है, सो पुट करते हैं, ये 9.8, 6.38 10⁻⁶ बाय 1 प्लस h की वैल्यू है 0.25 10⁻⁶ बाय 6.38 10⁻⁶, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10⁻⁶, और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 0.25/638 है, अगर हम इसके डेसिमल्स को कैंसिल करते हैं तो ये हमारे पास है 25/638, बिकॉज दोनों में दो डेसिमल है तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपको अप्रोक्सीमेटली क्या देगा, 0, बिकॉज बहुत ही स्मॉल नंबर होगा। सो आप इसको फाइनली अप्रोक्सीमेट कर सकते हो 9.8 इंटू 6.38 इंटू 10⁻⁶ बाय 1, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास आंसर होगा। हमने बिकॉज अप्रोक्सीमेट किया तो ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A satellite S is moving in elliptical orbit around the Earth. The mass of satellite is very small as compared to Earth. Then the angular momentum of S about the center of Earth changes in direction, but magnitude में same रहता है. Total mechanical energy of S varies periodically with time. Linear momentum remains constant. Acceleration is always directed towards the center of the Earth. So first of all ये बोला गया कि elliptical orbit है. सो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होगा, कमिंग टू जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एस अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन। सो हमने ये हमारी प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है आपको कि जब भी कोई सैटेलाइट या कोई प्लैनेट सन के अराउंड और कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, सो जो L है वो कांस्टेंट रहता है, बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन भी वही रहेगी और मैग्नीट्यूड भी वही रहेगी, तो इसमें बोला गया कि डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नाउ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ S पीरियोडिकली वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम, ये बोला गया कि टोटल एनर्जी है वो टाइम के साथ वेरी करती है, तो ऐसा नहीं है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है और उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है माइनस
जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट बाय जो टोटल डिस्टेंस है, सपोज आर ई प्लस एच, ये इसका मीन डिस्टेंस होता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी आप मीन डिस्टेंस निकाल सकते हो, कैसे? दैट इज 1r 1/a प्लस 1/b। यहाँ पे सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस है, तो वो एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और यहाँ पे वेरिंग दिया हुआ है तो ये भी गलत है। लीनियर मोमेंटम बोला गया कांस्टेंट रहता है, तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहता, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो ये भी गलत है। नाउ कमिंग टू लास्ट पॉइंट डी, एंड कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आपको ये पता है कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा, सेंट्रल फोर्स मोशन होगा, मींस ऑलवेज आपका जो एक्सेलरेशन है और जो फोर्स है वो हमेशा सेंटर की तरफ ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ही राइट ऑप्शन होगा, बाकी तीनों गलत हैं। पहले वाले में क्या मिस्टेक है कि पहले वाले में डायरेक्शन चेंज बोला हुआ है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती। सेकंड वाले में बोला हुआ है कि जो एनर्जी है वो वेरी करती है, तो एनर्जी वेरी नहीं करती, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और वो मीन ऑर्बिट वैल्यू पे कांस्टेंट रहती है। और जो थर्ड है हमारे पास कि मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं रहता, वो उसकी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहती। और अगर आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है कि टोटल एनर्जी कैसे कांस्टेंट रह सकती है, बिकॉज जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसकी शेप थोड़ी अलग होती है। सो लेट मी शो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट तो आपकी कुछ ऐसे होगी अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे एक सेंटर होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, ये वाला डिस्टेंस अलग है, और ये वाला डिस्टेंस अलग है, और जो आपकी टोटल एनर्जी है दैट इज GME/RE प्लस एच, वहाँ पे टोटल एनर्जी डिस्टेंस पे वेरी कर रही है। तो जो ये डिस्टेंस हमने लिया, ये यहाँ पे ये एवरेज डिस्टेंस होता है, और कांस्टेंट ऐसे रहती है कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है, यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहती है। और अगर आपको ये लगे, एक डाउट आपको ये भी आ सकता है कि सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी और हमें ये पता है कि यहाँ पे वेलोसिटी भी कम होगी, तो वो सिनेरियो ऐसा है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। इस पॉइंट पे अगर आप इसको डिस्टेंस को b ले लेते हो तो ये नेगेटिव में रिड्यूस हो जाएगी, और सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी पॉजिटिव में। तो इन दोनों का सम, और जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, अगर ये डिस्टेंस आप a ले लेते हो, तो इस सिनेरियो में पोटेंशियल एनर्जी मोर नेगेटिव चली जाएगी, प्लस हाफ mva से। यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मोर नेगेटिव चली जाएगी, तो वो उसके ऑफसेट को बैलेंस कर देगी, और टोटल एनर्जी अगेन कांस्टेंट ही रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। If v is escape velocity and vo is orbital velocity of a satellite in close orbit of Earth surface, then related by, तो हमें यहाँ पे दोनों का रिलेशन निकालना है। तो हमें ये पता है कि जो एस्केप वेलोसिटी है उसके लिए फॉर्मूला होता है √2gme/re, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है सैटेलाइट की उसके लिए फॉर्मूला होता है gme/re। ये हमने कहाँ पर कैलकुलेशन किया है? ये जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, हियर इट इज। ये हमने अभी कैलकुलेट किया था कि सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, GME/ms/ट्वाइस ऑफ जो उसका सेंटर से डिस्टेंस है। अगर वो अर्थ के क्लोज हो तो हाइट 0 हो जाएगी, और अगर हाइट 0 हो जाएगी तो ये बन जाएगा GME/RE, जो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है। सो दिस इज द वैल्यू। तो हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, √2 बाहर लेके GME/RE, और ये √2 टाइम्स ये वैल्यू है ऑर्बिटल वेलोसिटी की। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप इज √2 टाइम्स ऑर्बिटल, so escape is √2 times orbital. So option C is the right answer. A ball is dropped from spacecraft revolving around the earth at height of I think is 120 kilometer. What will happen to the ball? तो जो बॉल है वो 120 किलोमीटर की हाइट पे है। सो फ्रॉम दिस सिनेरियो, और जो बॉल है उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, बिकॉज उसको स्पेस क्राफ्ट से ड्रॉप किया गया है। मींस एक तो ड्रॉप करना होता है, एक
थ्रो करना होता है। ड्रॉप करने का मीनिंग है पहले वो स्पेसक्राफ्ट का हिस्सा थी, अब वो स्पेसक्राफ्ट से अलग हो गई और उस पे कोई आपने कोई फोर्स नहीं लगाया उसको अलग करने में, मीन्स वहां पे अलग से कोई इस पे फोर्स नहीं लगा, वो वही वेलोसिटी कैरी करेगी जो स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी थी। इस लाइक कि कोई प्लेन से जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट, आप ट्रेन के अंदर बैठे हो तो आपके पास वही वेलोसिटी होती है जो ट्रेन की होती है, और जैसे ही आप ट्रेन से जंप करते हो, अगर सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट पर्सन ट्रेन से जंप कर जाता है तो वो उसके पास ड्यूरिंग द जंप, जब वो जंप कर रहा है तो उसके पास सेम वेलोसिटी है जो ट्रेन की वेलोसिटी है। आफ्टरवर्ड्स पर्सन पे फ्रिक्शन लगेगा, एयर फ्रिक्शन और एयर ड्रैग की वजह से वो वेलोसिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे है, बिकॉज स्पेस है, स्पेस में फ्रिक्शन नहीं होता, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी मेंटेन रहेगी, और अगर उसकी वेलोसिटी मेंटेन्ड है तो वो अपनी ऑर्बिट को मेंटेन करके रखेगा। इट मींस इट विल कंटिन्यू टू मूव द सेम स्पीड एज दैट ऑफ स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, और वो टेंजेंशियली भी मूव नहीं करेगा। आपको कुछ ये लग सकता है कि सपोज कीजिए ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है और यहाँ पे इस पॉइंट पे स्पेसक्राफ्ट ऑब्जेक्ट को अलग कर देता है। सपोज वो उसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अलग कर दिया, तो बिकॉज आपको ये लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऐसे लग सकता है आपको कि उस ऑब्जेक्ट को तो ऐसे सीधा चला जाना चाहिए था, तो ये ऐसा सीधा नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे अर्थ भी है। अर्थ क्या लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। वो स्पेसक्राफ्ट पे भी लगा रही थी और इस ऑब्जेक्ट पे भी लगाएगी, तो वो इसको भी अपने अराउंड रिवॉल्व करती रहेगी। जो ऑर्बिट है वो वेलोसिटी से डिपेंड होती है, मींस आपको पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, GME/RE, बिकॉज जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो बॉल है उसके पास सेम वेलोसिटी है, उसके पास सेम वेलोसिटी है तो उसकी रेडियस भी सेम रहेगी ऑर्बिट करने की। दैट्स व्हाई वो अपने पाथ पे ही मूव करती रहेगी अलोंग ओरिजिनल पाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite A of mass m is at a distance r from the center of earth, another satellite B of mass 2m। सो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड्स का रेशियो बताना है, पहले मास r डिस्टेंस पे और दूसरा 2m जो 2r डिस्टेंस पे। सो इसके लिए बेसिक रिलेशन होता है हमारे पास कि जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है r क्यूब के। और हमने एक और रिलेशन किया है, हमने ये जो टी स्क्वायर है इसकी वैल्यू भी निकाली है कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू होती है, जो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, अगर हम इसको लिख दें ऐसे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब, तो जो के है उसकी वैल्यू होती है 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम। और ये मास कौन सा होता है? ये ऑब्जेक्ट का मास नहीं होता, ये जिसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं उसका मास होता है, यानी कि मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे अर्थ दिया गया है और अगर अर्थ और सन सिस्टम ले तो यहाँ पे ये मास ऑफ सन होगा। सो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है उसके मास पे ये डिपेंड नहीं करता। सो हेंस वी कैन राइट कि जो पहला है टी ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर का स्क्वायर, और जो टी ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स 2r का स्क्वायर। सो दोनों को डिवाइड कर दें अगर, तो टी ए बाई टी बी स्क्वायर इज इक्वल, ओ सॉरी क्यूब है यहाँ पे, सो के आर क्यूब बाय के 8r क्यूब। सो ये के आर क्यूब से के आर क्यूब कैंसिल, यहाँ पे बच जाता है 1/8, स्क्वायर रूट लेते हैं, टी ए बाई टी बी इज इक्वल टू 1/2√2, और यहाँ से टी बी आ जाता है 2√2 टी ए। सो दिस इज द आंसर, और रेशियो आएगा 1:2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन, minimum energy required to launch a satellite of mass m from the surface of earth, mass m and radius r, in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of earth is। so अर्थ के सरफेस से आपको m मास का एक सैटेलाइट लॉन्च करना है और उसको कहां पे बचाना है कि जब उसका एल्टीट्यूड 2r हो जाए, और एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि उसकी हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब है कि उसकी सरफेस से हाइट 2r हो जाए।
सो स्टार्टिंग में जो सैटेलाइट है वो यहाँ पे है और बाद में वो 2r की उसमें चला जाता है, रेडियस पे चला जाता है, एल्टीट्यूड पे चला जाता है, सॉरी। सो समथिंग लाइक दिस। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट सैटेलाइट ए पॉइंट पे है, आपको उसको बी पॉइंट पे पहुंचाना है, प्रोवाइडेड ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 2r और अर्थ का सेंटर पॉइंट ओ है और ये डिस्टेंस है हमारे पास r, ओ से ए तक का। तो ए पॉइंट पे हमें उसको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो बी पॉइंट पे जाएगा। और वही हमसे पूछा गया कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट पे ए और बी पे एनर्जीज को कंपेयर करके माइनस करते हैं। सो जो टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट, बिकॉज ए पॉइंट पे भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, और ये होगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय सेंटर से डिस्टेंस, दैट इज आर। और बी पॉइंट के लिए ये हो जाएगा माइनस जी एम ई एम बाय टोटल डिस्टेंस 3r सेंटर से। सो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो दोनों का डिफरेंस होगी। सो एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम ई एम बाय 3r माइनस माइनस ऑफ जी एम ई एम बाय r। So it is minus GMEM 3r plus GMEM by r। इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं। एक्चुअली वी मेड ए ब्लंडर हेयर। ब्लंडर हमने क्या किया, हमने सैटेलाइट को ऊपर तो पहुंचा दिया, मीन्स हमने इसको बी पॉइंट पे तो पहुंचा दिया, बट हम एक चीज मिस कर गए कि सैटेलाइट जब बी पॉइंट पे होगा, ए पॉइंट पे तो सरफेस ऑफ अर्थ पे है, तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट नहीं करेगा। बट जब वो बी पॉइंट पे होगा तो उसको बी सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट भी करना है। तो जब उसको सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करना है तो हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेनी, हमें उसकी टोटल एनर्जी लेनी है। और वो टोटल एनर्जी होती है, सैटेलाइट की टोटल एनर्जी हमारे पास होती है, इट इज माइनस जी एम ई मास ऑफ सैटेलाइट बाय ट्वाइस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, और ये है 3r। सो इट एक्चुअली विल बी 6r होगी यहाँ पे। सो यहाँ पे ये 6r हो जाएगा और यहाँ पे भी 6r होगा। सो माइनस जी एम ई बाय एम कॉमन होगा, r भी कॉमन आ जाएगा, 1/6 माइनस 1, और ये आपको देगा -5/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, GMEM R 5/6। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। लेट मी क्लेरिफाई अगेन कि जब सैटेलाइट ए पॉइंट पे है तो वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो ओनली उसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी दिस। जब सैटेलाइट बी पॉइंट पे है तो उसके पास क्या क्या है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी है और एक काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और इन दोनों के सम से सैटेलाइट की टोटल एनर्जी आती है, और उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, दैट माइनस GME बाय ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो हमने ये मिस्टेक कर दी थी कि हमने ओनली पोटेंशियल एनर्जी ली थी, काइनेटिक हम भूल गए थे, दैट्स वाई हमारा आंसर रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा था क्वेश्चन हमारा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Additional kinetic energy to be provided to a satellite of mass m revolving around a planet of mass m। So सैटेलाइट का मास स्मॉल m है, प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसका मास कैपिटल M है, टू ट्रांसफर इट टू सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ r1 टू r2, मींस उसको r1 से r2 में लेके जाना है। प्रीवियस क्वेश्चन जो था, सैटेलाइट कहां पे था, अर्थ के सरफेस पे था, उसको लॉन्च करना था। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब सैटेलाइट स्टार्टिंग कंडीशन क्या थी उसकी, वो सरफेस पे था, उसको लॉन्च करना था, और फाइनल ऑर्बिट थी हमारी सेकंड कंडीशन में। यहाँ पे इनिशियली वो r1 की ऑर्बिट में है, रोटेट कर रहा है, और बाद में वो फाइनल r2 में जाता है, वहां पे भी रोटेट कर रहा है। सो हमें दोनों पॉइंट्स की टोटल एनर्जी चाहिए होंगी। टोटल एनर्जी कौन सी, जिसमें काइनेटिक भी आए और पोटेंशियल भी आए। सो जब वो r1 है, r1 ऑर्बिट में है, तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी,
और ये रेडियस है यहाँ पे, ना कि हाइट। सो टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी कैपिटल एम मास ऑफ प्लैनेट बाय स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट बाय ट्वाइस ऑफ R1। और जब वो R2 की रेडियस में है तो उसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम बाय ट्वाइस ऑफ R2। तो दोनों का डिफरेंस ही वो होगा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको R1 से R2 में ट्रांसफर करने के लिए। तो डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा E TR2 माइनस TR1, सो माइनस GMM बाय 2R2 माइनस माइनस GMM बाय 2R1। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस GMM बाय 2 कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन नहीं लेते हम यहाँ पे बिकॉज आंसर में बाहर माइनस कॉमन नहीं है। और ये आएगा माइनस R2 प्लस R1। सो ऑप्शन हमारे पास आता है, यहाँ पे 2 भी मिसिंग है आई थिंक। सो इस ऑप्शन में यहाँ पे 2 मिसिंग है आई थिंक। अगर ये देखें तो यहाँ पे 2 है, हियर इट इज, ये रहा, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया। सो GMM बाय 2 1 माइनस R बाय 1 बाय R 1 माइनस 1 बाय R। सो ऑप्शन डी हमारा मैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assuming that the gravitational potential energy of an object at infinity is zero, the change in potential energy final to initial of an object mass m taken to a height h from surface of earth given by। तो उसको आपको h हाइट से कहां पे लेके जाना है, उसको आपको h हाइट पे लेके जाना है। और कहां से लेके जाना है, अर्थ के सरफेस से लेके जाना है। सो लेट अस ड्रा डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए। ये सपोज आपके पास अर्थ है, ये उसकी रेडियस है r। तो आपको उसको A पॉइंट से B पॉइंट पे लेके जाना है और A और B पॉइंट का जो डिफरेंस है वो हाइट h के इक्वल है। सो जो वर्क करना होगा वो दोनों की पोटेंशियल एनर्जीज के डिफरेंस के इक्वल करना होगा। तो A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एट A पॉइंट होगी माइनस GM मास ऑफ प्लेनेट, या यहाँ पे अर्थ ले लेते हैं, इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय R। और B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस GMM बाय टोटल डिस्टेंस दैट इज R प्लस H। अब जस्ट दोनों का डिफरेंस करना है हमें। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A माइनस GMM R प्लस H माइनस माइनस GMM डिवाइड बाय R। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, GMM कॉमन आ जाएगा, so it will be minus R plus H plus 1 by R। so R into R plus H, यहाँ पे नेगेटिव R नेगेटिव H प्लस R। सो फाइनल आंसर होगा माइनस GMM इंटू H R R प्लस H। और जो नेगेटिव साइन है ये जस्ट यहाँ पे दर्शाता है दैट पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A satellite of mass m is orbiting the earth of radius r at height h from its surface. Total energy of the satellite in terms of g node, the value of acceleration due to gravity on the earth's surface। so satellite की total energy होती है हमारे पास ET, total energy is negative होती है GM mass of earth mass of satellite divided by जो उसका डिस्टेंस है सेंटर से, हाइट h है, रेडियस r है, सो r प्लस h और यहाँ पे आता है 2। सो इसको हमें g की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक r यहाँ से कॉमन ले सकते हैं,
एंड हम कॉमन नहीं लेंगे बिकॉज आंसर में ऑप्शन में r प्लस एच है, तो ये टर्म्स को एज इट इज रखना है। तो हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ये था 2 इंटू आर प्लस एच, इसको एज इट इज रखते हैं। सो और यहाँ पे था m साथ में, ये बन जाता है आपका स्मॉल जी, क्योंकि जो स्मॉल जी होता है हमारे पास, इट इज GME, आई थिंक नॉट अंडर रूट नहीं आता, GME बाय आर स्क्वायर। सो ये बन जाएगा माइनस जी, और यहाँ पे जी नोड यूज किया गया है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच। सो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे मैच करता है, ऑप्शन ए भी मैच करता है, बस साइन का फर्क है। और आपको पता है टोटल एनर्जी किसी भी बाउंडेड सिस्टम की नेगेटिव होती है। बाउंडेड सिस्टम कौन सा होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड एक स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड करते हैं और जो मून है वो अर्थ के अराउंड करता है। ये बाउंडेड सिस्टम होते हैं और इनकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे टोटल एनर्जी को जीरो माना जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो फ्री है उसकी एनर्जी को जीरो माना जाता है, बाउंडेड सिस्टम तो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two satellite of S1 and S2 are moving in the same orbit, एक ही ऑर्बिट में है। The mass of S1 is 4 times mass of S2. Which of the following statement is true? तो हमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। Potential energies and of Earth and satellite in two cases are equal. S1, S2 moving with same speed. Kinetic energies of two satellites are equal. Time period of S1 is 4 of S2. सभी स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एनालाइज करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी है, स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है। तो पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। सैटेलाइट के लिए टोटल एनर्जी होती है माइनस जी मास ऑफ प्लैनेट, ये यहाँ पे अर्थ है, मास ऑफ सैटेलाइट बाय डिस्टेंस, और यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है तो सपोज कर लेते हैं कि h हाइट है, सो ये हो जाएगा ट्वाइस r प्लस एच। तो यहाँ से देखिए जो टोटल एनर्जी है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी पे आए अगर, सो E पोटेंशियल इज माइनस GMEMS बाय R प्लस एच। पोटेंशियल भी मास पे डिपेंड करती है, और काइनेटिक देखें तो वो जस्ट टोटल का पॉजिटिव होती है, GMEMS डिवाइड बाय R प्लस एच ट्वाइस। सो जो टोटल एनर्जीज हैं वो भी इक्वल नहीं होगी, पोटेंशियल इक्वल नहीं होगी, काइनेटिक भी इक्वल नहीं होगी। तो ये बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, तो ये गलत है। जब काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं है तो उनके जो वेलोसिटीज या सेम स्पीड हम नहीं बोल सकते कि वो सेम स्पीड से मूव करेंगे, तो बी भी नहीं बोला जा सकता। काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल है ही नहीं, जो एज पर हमने स्टेटमेंट से देखा। तो अब ये पूछना है कि टाइम पीरियड इक्वल होंगे या नहीं। ये टाइम पीरियड ऑफ S1 इज 4 टाइम्स ऑफ S2। सो जो टाइम पीरियड होता है, और ये एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन बी पे हमने एक मिस्टेक कर दी, इसको हम वो करते हैं, यहाँ पे स्पीड मेंशन है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। सो स्पीड के बारे में अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, बिकॉज हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जीज मास पे डिपेंड करती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगी, बिकॉज स्पीड के अंदर स्पीड जो है ऑर्बिटल स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है GME बाय डिस्टेंस R प्लस एच। तो ऑर्बिटल स्पीड सेम हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, और दोनों का डिस्टेंस है जो सेम ऑर्बिट में, तो डिस्टेंस सेम है, सो ऑर्बिटल स्पीड सेम होंगी। और जो फोर्थ आता है लास्ट, टाइम पीरियड इज 4 टाइम्स दैट ऑफ S1 का टाइम पीरियड S2 के टाइम पीरियड के 4 टाइम्स होगा। नाउ जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, और दोनों का डिस्टेंस सेम है, सो टाइम पीरियड भी इक्वल होगा। सो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। सो यहाँ से ओनली एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
For a satellite in orbit around the earth, the ratio of kinetic energy to potential energy. So kinetic energy होती है सैटेलाइट की GMEM बाय 2, और यहाँ पे डिस्टेंस होता है, सपोज डिस्टेंस r ले लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट इज -GMEM बाय r। तो अगर आप दोनों का रेशियो निकालोगे, E काइनेटिक बाय E पोटेंशियल, तो ये आएगा यहाँ से GME बाय R, तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 1/2। सो नेगेटिव आएगा, बट हम ओनली मैग्नीट्यूड की टर्म्स में कंपेयर कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, satellite of mass m moving orbiting around the earth in circular orbit of velocity v, what will be the total energy? तो टोटल एनर्जी बतानी है इन टर्म्स ऑफ v की टर्म्स में, हमारे पास टोटल एनर्जी बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी तो हो जाएगी, बिकॉज उसकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। ये काइनेटिक हो गई। और हमें ये पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट की, वो होती है काइनेटिक एनर्जी का डबल इन नेगेटिव। कैसे पता है हमें? हम अगर बेसिक फॉर्मूला लिखें तो पोटेंशियल एनर्जी है -GMM बाय R, और काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस GMM बाय 2R। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1/2 का रिलेशन है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी का, बस यहाँ पे साइन नेगेटिव हो जाएगा। सो इट विल बी -mv², और टोटल एनर्जी आ जाएगी -mv² प्लस हाफ mv², और ये आ जाता है -half mv²। सो नेगेटिव mv² टोटल एनर्जी आ जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो विद दिस ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है इस चैप्टर के लिए। होपफुली जो हमने क्वेश्चन कवर किए वो आपके लिए अंडरस्टैंडेबल रहे होंगे। इवन देन अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आल्सो if possible, do make some donation. It helps a lot to keep this thing running. And also check out our other videos in our playlist section of our channel. So again, thanks for watching, and we will meet in next video.